नमस्कार दोस्तों, शेपिंग अ नेशन के नए एपिसोड में मैं डॉक्टर मनीष मित्तल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेशन ऑफ हैदराबाद। किस तरह हैदराबाद भारत का एक हिस्सा बना, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके साथ ही उसका पार्टीशन कर दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। साथ ही जो इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थे या राज्य रजवाड़े थे, उन्हें ये छूट दी गई थी कि वे चाहे तो इंडिया में शामिल हों, वे चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों या अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दें। उसमें से 552 रजवाड़े भारत की सीमा में आते थे और उसमें से 549 ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतीय सरकार को सौंप दिया था 15 अगस्त 1947 के पहले। लेकिन 3 राज्य रह गए थे जिन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतीय सरकार को नहीं दिया था। ये 3 स्टेट्स थे जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। इसमें जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं पिछले 2 एपिसोड्स में। तो आज हम बात करेंगे तीसरे स्टेट की, जिसका नाम है हैदराबाद। कैसे हैदराबाद भारत का एक हिस्सा बना और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ इरादों ने इसे एक भारत का अमूल्य हिस्सा बना दिया। यही सब आज हम जानेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया मुझे लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स एवं सब्सक्राइब्स ही मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए निरंतर बनाता रहूं। तो बिना वक्त गवाए हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है एक्सेशन ऑफ हैदराबाद। In 1947, the British agreed to leave India, leaving 2 states in their wake, the Muslim majority Pakistan and the Hindu majority India. The princely states had to choose to integrate with one of these 2 nations. The Nizam of Hyderabad, Osman Ali Khan, wanted to be completely independent. This was rejected by the last Viceroy of India, Lord Mountbatten, and more importantly, by Sardar Vallabhbhai Patel. Patel was the head of the States Committee, and he began to pressure the Nizam with threats and promises to integrate with India. Despite these efforts, on 15th August 1947, as Nehru hoisted India's flag in New Delhi, declaring independence from British rule, 1,500 kilometers away, the Nizam declared his independence. In a last-ditch effort in November 1947, Sardar Patel agreed to a temporary treaty with the Nizam. This treaty focused on maintaining the status quo to prevent any further chaos during the partition. To ensure this, the Indian army would be removed from Secunderabad and no military action would be taken by either party. Just like with the British, the Nizam would continue to preside in Hyderabad, but the important decisions would be made by the Indian government. However, both sides began to ignore the terms of this treaty almost immediately. The Nizam loaned £15,000 to Pakistan, which only worsened Patel's fears that a hostile power was growing at the heart of the country. India responded by economically isolating Hyderabad, which in turn cemented the Nizam's belief that a break was inevitable. Much of the Nizam's anxiety was rooted in the fact that he was the Muslim ruler of a state of 16 million people, most of whom were Hindu. He and others in the aristocracy feared that rising communal tensions would lead to them being overthrown. Their answer to this problem lay with the Razakars, or volunteers. They demanded and were granted special protection by the Nizam, turning them into his unofficial secret police. Over the years, as the Nizam relied on the Razakars more and more, they were given further leeway in just how far they could take their violence. In 1945, the Razakars tried to brutally suppress a communist-led peasant movement that demanded the removal of the Nizam. By 1948, the violence had spread outwards from Hyderabad into the villages and towns across the state. The Razakars used looting, murder, and sexual assaults to terrify an estimated 40,000 Hindus to flee the state, while thousands of others were unfairly jailed. By the end of this violence, more than 150 villages had been scarred, half of which were outside Hyderabad's borders. It seemed that the fires of partition had spread to the heart of India, and Patel would not allow this to go on any further. In this chaos, the government of India greenlit a military takeover from the Nizam, dubbed Operation Polo, named after the 17 polo grounds in the state of Hyderabad. In order to prevent international criticism, the Indian government framed the military assault as a police action. This informal invasion began on the 13th of September and took 5 brutal days to complete.
More than 2,000 of the Nizam's fighters were killed, and another 3,600 were imprisoned. When the Indian armed forces entered Bidar, the Nizam was forced to surrender, and so the state of Hyderabad was absorbed into the Indian Union. हैदराबाद के एक्सेशन की कहानी सुनने से पहले हम जान लेते हैं हैदराबाद के बारे में कि 1947 में यानी 1947 में हैदराबाद कैसा था। हैदराबाद भारत का एक लार्जेस्ट स्टेट था जिसके अंदर कुल 83,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया आता था। इसमें इसकी पॉपुलेशन 1.65 करोड़ थी, जिसमें 85% हिंदूज थे और 15% मुस्लिम्स थे। लेकिन ज़्यादातर आर्मी एवं स्टेट की पोजीशन की टॉप पोजीशंस पे मुस्लिम्स थे। इसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पर उस समय एक मुस्लिम निज़ाम मीर उस्मान अली खान का राज्य था, जो कि हैदराबाद के 7th निज़ाम थे। निज़ाम शाही चालू हुई थी औरंगज़ेब के द्वारा। जब उन्होंने डेक्कन पर कब्जा किया था तो वो अपने गवर्नर यहाँ पर नियुक्त करके गए थे, जिन्हें निज़ाम कहा जाता था। और निज़ाम मीर उस्मान अली खान यहाँ के 7th और लास्ट निज़ाम थे, जिन्होंने 1914 से 1948 तक राज्य किया था। इनके राज्य में हैदराबाद राज्य ने बड़ी तरक्की की थी। इन्होंने एयरपोर्ट बनवाए थे और रेलवेज़ बनवाए थे। इन्होंने उस्मानिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी चालू की थी एवं कई मेडिकल कॉलेजेस एवं स्कूल कॉलेजेस खुलवाए थे अपनी जनता की अपलिफ्टमेंट के लिए। उस समय हैदराबाद स्टेट के पास अपना खुद का रेलवे था, खुद का डाकतार विभाग था, खुद की एयरलाइंस थी, खुद की करेंसी थी एवं खुद की आर्मी थी। निज़ाम मीर उस्मान अली खान वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स में शामिल होते थे। 1937 में इनकी कुल संपत्ति 2% ऑफ यूएस जीडीपी के बराबर थी और 1947 में ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे। हैदराबाद एक मल्टीलैंग्वेज स्टेट था जहाँ पर प्रमुखता से तेलुगु बोली जाती थी, लेकिन इसके साथ ही मराठी लोग भी यहाँ पर काफ़ी थे। 48% तेलुगु, 26% लोग मराठी बोलते थे, 13% कन्नड़ा एवं 10% लोग उर्दू बोलते थे। यह स्टेट इतना बड़ा था कि इसमें आज के महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के काफ़ी हिस्से आते थे। ये भारत के बीचों बीच बना था और नॉर्थ को साउथ से जोड़ने वाला एक स्टेट था। इसका एक्सेशन भारत में इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यही जो एक स्टेट था जो नॉर्थ को साउथ से जोड़ता था। अगर ये भारत का हिस्सा नहीं होता तो नॉर्थ और साउथ दो सेपरेट एंटिटीज़ के रूप में हो जाते भारत के अंदर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एवं अदर थिंग्स के हिसाब से बहुत ही मुश्किल होता भारत के लिए। तो इसका भारत में जोड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थी और हिंदूज मेजॉरिटी में थे, तो 2 नेशन थियोरी के हिसाब से इसका एक्सेशन भारत में ही होना था। लेकिन इसके नवाब भारत में एक्सेशन के इच्छुक नहीं थे। वे पाकिस्तान में भी एक्सेशन नहीं चाहते थे शुरुआत में और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते थे। इन्होंने ये भी कोशिश की थी कि लॉर्ड माउंटबेटन से ये गुजारिश की थी कि वे हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दें आज़ादी के पहले, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उनकी ये पेशकश ठुकरा दी थी। इसके बाद इन्होंने सर क्लेमेंट एटली को भी अप्रोच किया था टू बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, लेकिन क्लेमेंट एटली ने भी इनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हैदराबाद जो था, जिसका एरिया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कंबाइंड एरिया से भी बड़ा था, वह भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों को जोड़ता था। नॉर्थ और साउथ के बीच में कनेक्शन था हैदराबाद का ये स्टेट, और इसके बीचों बीच भारत के बीचों बीच कोई दूसरा नेशन जो कि नॉर्थ और साउथ को अलग अलग करता हो, ऐसा भारत की अखंडता और भारत की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इट कुड हैव बीन लेड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। इसलिए इसका भारत में विलय बहुत ज़रूरी था। पर चूंकि उस समय के हमारे जो राजनेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये अनड्यू प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहते थे किसी भी प्रिंसली स्टेट पे, तो उन्होंने हैदराबाद के ऊपर भी अनड्यू प्रेशर नहीं बनाया और उनके साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया।
स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि जो ज़रूरतें और जो व्यवस्था पुराने समय से चली आ रही थी अंग्रेज़ों के साथ, वही आगे भी जारी रहेंगी। जिसका मतलब ये था कि हैदराबाद अपने इंटरनल मैटर्स को खुद ही मैनेज कर सकता था, लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट जो मैटर्स थे, जिसमें कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ये इनके बारे में लेने का फैसला भारतीय सरकार के पास था। दरअसल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने का निज़ाम जी का उद्देश्य जो था वह टाइम बाय करना था। वे चाहते थे कि उन्हें कुछ समय मिल जाए ताकि वे हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट नेशन, सेल्फ सस्टेन्ड नेशन के रूप में स्थापित कर सकें। तो आगे चलकर उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की तीनों कंडीशंस को अनदेखा किया। हैदराबाद की एक प्राइवेट मिलिशिया भी थी जिसे रज़ाकार्स कहा जाता था। ये इस मिलिशिया को लीड कर रहे थे कासिम रज़वी। ये बहुत एक रेडिकल सेना थी जो हिंदुओं पर अत्याचार करती थी, और जो हैदराबाद स्टेट के, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी हिंदूज थे, उनके ऊपर ये जुल्म ढाती थी। साथ ही साथ इनके बाद में हौसले इतने बढ़ गए कि ये हैदराबाद स्टेट से बाहर निकलकर जो भारत के एडजॉइनिंग एरियाज़ थे वहाँ पे भी हिंदुओं के साथ लूटपाट और रेप्स करके वापस अपने हैदराबाद स्टेट में वापस आ जाते थे। इस तरह की एक्टिविटी को देखते ही शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हैदराबाद भारत के लिए पेट में कैंसर जैसा है, जिसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा, अदरवाइज़ ये दूसरे स्टेट्स में भी फैल जाएगा। इन रज़ाकार्स की बढ़ती हुई क्रूरता को देखकर सारा भारत का जनमत जो था वह हैदराबाद स्टेट के खिलाफ हो गया था। जो अब मैंने आपको जैसा बताया कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, 3 इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे भारत सरकार को निर्णय लेने का अधिकार था, जो के थे कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। नवाब ने इन तीनों कंडीशंस को नहीं माना और धीरे धीरे करके इसे तोड़ना चालू कर दिया। उन्होंने रेल यात्राओं को बाधित किया, जिसमें रज़ाकार्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और हैदराबाद के रास्ते जो भी रेल से लोग सफ़र करते थे उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दूसरा, उन्होंने कोशिश की कि हैदराबाद को कॉमनवेल्थ नेशंस में शामिल किया जाए। वे खुद अपना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री खुद से ही चलाना चाहते थे। हालांकि क्लेमेंट एटली, जो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही साथ हैदराबाद ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए मदद के लिए, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स का खुला आम उल्लंघन था। उन्होंने ये भी कोशिश की कि गोवा से वो लीज पे या फिर बाय कर ले कुछ, और वहाँ पर कुछ पोर्ट्स बनाए ताकि उन्हें एक्सेस टू सी आसानी से मिल जाए, जिससे कि उनके राज्य में गुड्स का आवागमन आसानी से हो जाए। इसी के साथ उन्होंने अपनी आर्मी को भी बढ़ाना शुरू किया और आर्मी में न्यू रिक्रूट्स बढ़ाने लगे, यह कह के कि वो उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। इस तरह निज़ाम ने सारी जो भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्तें थी उन्हें खुले आम से उसका उल्लंघन किया। यह देखकर भारत में उनका विरोध बढ़ने लगा और सरकार के ऊपर यह दबाव बढ़ने लगा कि वे हैदराबाद का एक स्थायी, एक परमानेंट सॉल्यूशन तलाश करें। इस बारे में दो हमारे जो प्रमुख राजनेता थे उनके अलग अलग राय थे। सरदार वल्लभ भाई जहाँ चाहते थे कि फोर्स का यूज़ करके, एग्रेशन यूज़ करके हैदराबाद को सबक सिखाया जाए और उसको एनेक्स कर लिया जाए इंडिया के अंदर। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जो भी बात हो वो शांति से हो, बातचीत के थ्रू हो, और बातचीत के थ्रू ही सारे हमले सारे जो मामलात हैं वो सॉल्व किए जाएं। इसी के साथ उनके साथ राजा गोपालाचारी, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका भी यही मत था। तो हैदराबाद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी फोर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट 2 बार ऐसा हुआ कि हैदराबाद पे अटैक के लिए प्रोग्राम बना, लेकिन दोनों बार यह असफल हो गया। भारत की तरफ से निष्क्रियता देखते हुए जो निज़ाम थे उनके हौसले बुलंद होते गए।
उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यूरोप भेजा फॉर परचेसिंग आर्म्स एंड एमिनेशन। हालांकि यूरोप में उन्हें वो तो नहीं मिला जिसके लिए वे गए थे, लेकिन उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई आर्म डीलर का ज़रूर साथ मिला जिसका नाम था सिडनी कॉटन, जो कि उन्हें हथियार देने पर राज़ी हो गया। जब भारत सरकार को ये पता चला तो उन्होंने सिडनी कॉटन के सारे जो भी जहाज़ थे उन पर रोक लगा दी। इन सब हरकतों को देखकर सरदार वल्लभ भाई ने उस समय के मेजर जनरल करियप्पा को अपने पास एक मीटिंग के लिए बुलाया। यह मीटिंग बमुश्किल 5 मिनट चली, जिसमें सरदार वल्लभ भाई ने सीधे करियप्पा से यह प्रश्न किया कि अगर हैदराबाद पे हम कुछ एक्शन लेते हैं और पाकिस्तान उसका जवाब देता है तो क्या हमारी जो सेना है वो बिना किसी अतिरिक्त समय मदद के पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है। इसका जवाब करियप्पा ने दिया हाँ, और इसी के साथ ये मीटिंग समाप्त हो गई। इसी समय कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि एक और मोर्चा पाकिस्तान के साथ खुले। लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि अगर भारत हैदराबाद में कुछ भी करता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान उसका जवाब भारत के शहरों पर बमबारी करके दे। 22 मई 1948 को रज़ाकारों ने गंगापुर में भारतीय हिंदुओं जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया और भारी मात्रा में मारकाट और लूट खसोट मचाई। यह देखकर सरदार वल्लभ भाई के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सोचा कि अब कोई एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ जो निज़ाम थे उन्होंने राजा गोपालचारी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कोई भी एक्शन हैदराबाद के अगेंस्ट, मिलिट्री एक्शन हैदराबाद के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। राजा गोपालाचारी ने इसको सीरियसली लिया और उन्होंने नेहरू जी के साथ बैठकर इस पत्र का उत्तर देने की बात कही। इस प्रश्न का उत्तर जब तक निकल पाता और जब तक ये पत्र हैदराबाद तक पहुंच पाता, उसके पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत कर दी। ऑपरेशन पोलो एक सैन्य अभियान था जिसका मकसद था हैदराबाद को मुक्त कराना। इसे ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान थे, करीब 17 मैदान थे पोलो के, इसीलिए इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई 13 सितंबर 1948 को, और जब तक खत निज़ाम के साथ पहुंच पाता तब तक भारतीय सेना जो थी वो हैदराबाद में दाखिल हो चुकी थी। पंडित नेहरू और राजा गोपालाचारी को ये लग रहा था कि पाकिस्तान इसका जवाब अहमदाबाद, दिल्ली या फिर बम्बई जैसे शहरों पर बमबारी करके देगा। लेकिन इस ऑपरेशन के 2 दिन पहले यानी 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया था। जब भारतीय सेना 13 सितंबर को हैदराबाद में दाखिल हुई तब जवाहरलाल नेहरू एवं राजा गोपालचारी को यह भय सता रहा था कि पाकिस्तान इसका जवाब भारतीय शहरों पर बमबारी करके देगा। इनफैक्ट ये बाद में पता चला कि निज़ाम ने मोहम्मद अली जिन्ना से यह पूछा था कि अगर भारत की तरफ से कोई हमला या कोई एक्शन हैदराबाद के अगेंस्ट होता है तो क्या पाकिस्तान हैदराबाद का साथ देगा, जिसका जवाब जिन्ना ने यह कह दिया था कि वे मुट्ठी भर एलिसिट मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और भारत उसका जवाब देता है तो हो सकता है कि भारत पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। जब 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया और अपना ऑपरेशन पोलो शुरू किया, तब यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक मीटिंग बुलाई थी अपने आर्मी चीफ्स की,
और उसमें उन्होंने ये पूछा था कि क्या वे भारतीय शहरों पर बमबारी कर सकते हैं, जिसका जवाब उन्होंने यह देकर कहा था कि भारतीय पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 जहाज़ हैं, 4 हवाई जहाज़ हैं, जिसमें से 2 की हालत इस तरह की नहीं है कि वे उड़ सके, और जो 2 बचे हुए जो हवाई जहाज़ है वो भारतीय शहरों पर बमबारी तो कर सकते हैं, लेकिन वे वापस लौट के नहीं आ सकते हैं। इसलिए लियाकत अली खान ने भारत के ऊपर हमले का जो अब उनका प्लान था वो टाल दिया। जब 24 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई, तब भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भारतीय सेना को सिर्फ 4 दिन लगे हैदराबाद को रज़ाकारों से मुक्त करवाने के लिए और निज़ाम को उनकी गद्दी से हटाने के लिए। 17 सितंबर को आखिरकार रज़ाकारों ने घुटने टेक दिए और वहाँ के निज़ाम जो थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसी के साथ ऑपरेशन पोलो ख़त्म हुआ और हैदराबाद का भारत में विलय संभव हो पाया। इस ऑपरेशन पोलो में रज़ाकारों ने 1373 लोगों को गंवाया। 1373 रज़ाकारों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 807 रेगुलर सोल्जर्स जो हैदराबाद आर्मी के थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। भारतीय सेना के 67 जवान जो है वो इसमें शहीद हुए और 56 इंजर्ड हुए। इसी के साथ हैदराबाद हमेशा के लिए भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसका सारा श्रेय दिया जाना चाहिए सरदार वल्लभ भाई के दृढ़ निश्चय को, जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल करके बताया और ये भी बताया कि अगर हम किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो वो हमें हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से जो आज हम भारत देख रहे हैं, एक भारत का जो नक्शा है पूरे भारत का, वो पूरे भारत एकजुट हो पाया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू को हम जितना साधुवाद दें, हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि इन महान महानुभावों के अथक प्रयास से हमें एक यूनाइटेड इंडिया जिसका आज स्वरूप हमें मिल रहा है और जो लगातार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, वह स्वरूप हमें इन्हीं महानुभावों के अथक प्रयास से मिला। अगले हफ्ते हम एक नई कहानी के साथ आपके पास आएंगे। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स ही मुझे आगे मोटिवेट करते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो और बनाते रहूं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।